Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So what we are at so far? So far we read that we have a language. We have what? Language, and this language, if accepted by a finite automata, okay, by some automaton, the finite automaton, if it is accepted, then this language will be called as regular language. Regular. So we have a regular language, and it's being accepted by some finite automata, and finite automata is of, firstly, of type deterministic. Okay, it could be deterministic, or it could be non-deterministic. Right? We have seen this diagram before also. Okay, and so deterministic is called as deterministic finite automata. What is that called? We call it what? DFA. Right? And now today we have the non-deterministic, that's called NFA. In NFA we can have two things. Either this is the NFA, simply NFA, or NFA with epsilon moves. With? That we have the epsilon moves. We have the NFA with the epsilon moves. What does that mean? And what's the difference between DFA and NFA? Okay? So what is firstly non-determinism? I have told you in the beginning that yes, it can go to multiple states. Okay? In deterministic we have a Q0. After input 1, say for example, it will go to Q1. Okay? Now it will go only to Q1. But in non-deterministic, on input 1, it may go to Q2. Even it may stay on itself. So that means on Q0, it can go to multiple states. It may go to all states. It may go to any of the states which belong to the Q, the capital Q. What we have in the 5 tuples. In the 5 tuples we have a Q. The Q is the sum all the states. It can go any state. Right? There is only one difference. In deterministic we have a clear path. That from this it will go to this, after this it will go to this. Right? But in non-deterministic, it may branch. It's like a threads. We have a process. You are reading operating system. So we have a process, and we may have sub-threads. So this process divides itself into 2 threads. Now this may divide into 2 threads. So it will carry on. Okay? But non-deterministic जो है हमारे पास, so it has gone to this, then it has gone to this. It may subdivide. Okay? It may go like this, and maybe from this side it go to the accepting state. It go to the accepting state. If out of any branch, it goes to the accepting state, then we say this language is being accepted by the finite state automata, which is non-deterministic. Because whether we have a DFA or we have an NFA or whatever we have, that is actually the automata is a representation of what? Which accepts the language. In DFA, it represents, what is DFA actually? It's an automata. It's what? It's the abstract machine, which accepts some language. If it accepts that language, that regular language, and it goes to the final state, we say this input is accepted. This input is accepted. Similarly, in this NFA, which may have multiple branches, which may have what? Ultimately, from one of the branch should go to the accepting state. If others are not going, it's all right. But if one of them at least is going, so that means this input is accepted. So this language is accepted by that automata. Okay? So non-deterministic और deterministic में एक तो ये फर्क है. पहली फर्क क्या है कि यहाँ पे state 1 से input जब आएगा वो सिर्फ एक ही दूसरे state पे जाएगा.
किसी और स्टेट में नहीं जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है कि एक वन इनपुट्स पे ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, खुद पे भी रह रहा है। सो दिस इज द वन डिफरेंस। अगर आप देखोगे जो जो हमारा था कि ट्रांजिशन फंक्शन, जो हमारा क्या था, ट्रांजिशन फंक्शन, दैट वी से कि भाई आपको एक स्टेट थी, उसको आपने कोई इनपुट दिया सिग्मा, ठीक है, और वो किसी और स्टेट में गया। अब यहाँ पे जो है किसी और स्टेट पे गया ना, वो एक स्टेट नहीं हो सकती है, वो मल्टीपल स्टेट हो सकती है। और वो कितनी होंगी, वो पावर सेट होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 स्टेट्स है, क्या है, इफ आई हैव 3 स्टेट्स 1 2 3 Q0 Q और 2 ही स्टेट लेते हैं, Q0 and Q, if I have 2 states only, what will be the power set of it? It will be either the epsilon empty, it can go to Q0, it can go to Q1, or it can go to Q0 Q1, both, right? So it can either go nowhere, that's an empty, it can go to Q0 itself, so it's Q0 on input 1 can go to itself, on input 1 can go to the Q1, or it can go to the both. It can go to the both. So how many combinations we have? 4. So if we have 2 states, we can have 2 raised to power 2. We can have what? 2 raised to power 2. That is how much? 4. So we have 4. If we have 3 states, if we have how many? 3 states. Then 8 combinations. it will go, if you have 3 states, say for example we have 3 states, how many? 3 states. Load आ गया, सर आप उसको बंद कर दें। बंद कर दो। If we have, say for example, 3 states, if we have 3 states, Q0, Q1 and Q2, so how many total states we could have? 2 raised to power 3, that is, 8 combinations. so it can go to the 8, out of 8 combinations can go to anywhere. So that means our transition function will be little different here. In our DFA, the transition function was that it can go to only one state, which belong to the some of the state. जो हमारी states थी Q, उसमें से कोई भी एक state में जाता ना, यहाँ पे वो तो किसी पे भी जा सकता है ना, तो सब पे भी जा सकता है, सब पे भी जा सकता है, एक पे भी जा सकता है, empty पे भी जा सकता है। So अगर मेरे पास 3 states हैं, so 2 raised to power 3 8 state में ये जा सकता है। So that means ये transition function है, जब मैं उसको input कोई दूंगा, I will give some input to a state, okay, it can lead to Q raised to power 2, Q raised to power 2, Q is the whatever my states are, मेरे पास जितनी states हैं, 2 state हैं, 3 हैं, ठीक है, I will come back to it. So this is the first difference between DFA and non-deterministic finite automata. What is finite automata? It's an abstract machine. Finite states, right? Will they have output? No, because automaton, finite automata can be which is having output and which is having not output. If we talk about output, then there is the Moore's and Mail machines, right? But without output, we have the DFA, NFA, and NFA with epsilon moves, Yes. right? You remember that picture now? Yes. It's getting clearer now. Teachers, getting the point? Yes, sir. Now, what is the first difference? I said that in the DFA, what will happen? Can only go to the one. It can only go to the one state after receiving some input. That input comes from where? That input comes from the alphabet. That input comes from the Signal. from alphabet. Any input you have, it will go to the only one state. But in case of non-deterministic, it can go to the 2 raised power. Q raised power 2 states. Q raised power. What is Q? मेरे पास कितने states हैं? अगर मेरे पास 3 states हैं, so 3 raised power 2 that is 8. No, 3 raised power 2 कितना होता है? 9. मैंने गलत किया था. Because अगर मेरे पास 3 states है ना, that will be 3 raised power 2 that is 9. तो 9 states मेरी बनेगी ना, and so on. ठीक है? ये पहली डिफरेंस है. दूसरी डिफरेंस क्या है कि जो DFA है वो कंप्लीट होता है. दैट्स अ कंप्लीट सिस्टम. कंप्लीट सिस्टम का मतलब ये होता है कि फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक स्टेट है Q0, क्या है, और मेरा सिग्मा जो है, अल्फाबेट जो है
में 0 1 है, दो चीजें हैं। मैंने बोला कि 0 पे ये गया इधर Q1 के पास और 1 पे नहीं बोला मैंने, वो गलत है। DFA बोलता है नहीं, इट्स ए कंप्लीट सिस्टम। 0 पे बोला 1 पे भी बोलो, 0 पे बोला जितने अल्फाबेट्स हैं सब पे बोलो क्या हो रहा है। तो जब Q0 से शुरू करोगे 0 की भी बात भी करो और 1 की भी बात करो। हो सकता है कि आप अलाउ ही नहीं करना चाहते 1। इट इज पॉसिबल दैट आई डोंट वांट कि 1 से शुरू हो, है ना। तो उस सूत्र में दिखाना फिर भी पड़ेगा कि भाई ये 1 है एंड इट इज गोइंग टू सम अदर स्टेट व्हिच इज 3, इट्स कॉल्ड द डेथ स्टेट और द हार्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर स्टक हो जाएगा ना। अगर 1 आ गया इधर स्टक, इसके बाद तो कहीं जा नहीं ना, ठीक है। लेकिन जो आपका नॉन डिटरमिनिस्टिक है वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं। वहां अगर आपको ये Q0 है, it go on a 0 on the Q1, you don't need to talk about 1, no need to talk about 1। आपको ये डेथ स्टेट जो है बोलने की जरूरत नहीं, या ये हाफ स्टेट है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन DFA में बोलना पड़ेगा। इन DFA you have to talk about all the inputs from the alphabet, उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। आपको NFA में करना नहीं पड़ेगा, वहां आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कितनी डिफरेंस हो गई? 2। कौन कौन? पहली डिफरेंस क्या थी? हाँ, उसमें इट्स अ कंप्लीट सिस्टम, राइट। व्हाट डज दैट मीन? If we have to shoot for all the possible alphabets. Yes, all the possible alphabets. तीसरी बात जो है आपको याद रखनी है कि जो क्या मैं कहूँगा, अगर मैं आपसे कहूँगा जो मेरा NFA जो DFA है, क्या वो NFA है? Yes, all DFAs are NFAs, but NFAs are not DFAs, क्योंकि जो NFA है नॉन डिटरमिनिस्टिक, जो आपका फाइन ऑटोमेटा है, वो जनरल फॉर्म है। वो क्या है? इट्स ए जनरल फॉर्म ऑफ, उसमें एक फॉर्म है आपका DFA। तो DFA उसी NFA में एक छुपा हुआ है ना। देखिए मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कि आपको एक ये है, इधर गया ये, फिर इसके 2 साइकिल्स निकले, फिर इधर गया ये और इधर से गया और इधर से जाके ये सीधे एक्सेप्टिंग स्टेट में आ गया। अगर मैं ये खाली लूंगा, ये है ना आपका डिटरमिनिस्टिक, जिसमें एक्सेप्टिंग हो गया था ना, है ना। सो इट्स अ पार्ट ऑफ NFA। So DFA is nothing but a part of NFA. NFA is the generalization, जिसमें मैं सारा ले रहा हूँ, मैं सारी वो पार्ट्स ले रहा हूँ कि जो मेरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन हालांकि इसमें से 1 या 2 भी हो सकता है, एक्सेप्टिंग स्टेट को गए। सो अगर मैं सिर्फ वो लूंगा, ठीक है, सो इट बिकम्स द DFA। डज इट मेक सेंस? बात समझ आए? तो आपको सारे इनपुट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 1 आपको जो है एक और डिफरेंस है, मेरे दिमाग से चली गई, तो एक और डिफरेंस की है, वो भी पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल आपको क्लियर आइडिया आ गया थोड़ा सा, ठीक है। लेट अस सी व्हाट द बुक सेज, द सिम्पसन। तो ये बता, देखिए क्या बता रहा है, नॉन डिटरमिनिज्म इज अ जनरलाइजेशन ऑफ डिटरमिनिज्म, ठीक है। सो जो डिटरमिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा है, जो आपका DFA है, इज ऑटोमेटिकली NFA, वो है बिकॉज अ पार्ट ऑफ इट। गेटिंग? अच्छा ये ले लीजिए आप। हाँ, एक और डिफरेंस जो बता रहा था मैं, यहाँ से आता है कि आपका जो है कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एक स्टेट है, ठीक है, और दूसरी स्टेट है, और इनपुट कुछ नहीं है, इनपुट होना चाहिए ना, तो एप्सिलॉन कैन बी इन केस ऑफ NFA, लेकिन DFA में एप्सिलॉन मूव्स नहीं। यानी कि आपको अगर एक स्टेट है, आप कहते हो कि इस स्टेट से गया Q0 से गया Q1 की तरफ, ठीक है, यू ऑन द एप्सिलॉन, तो भाई साहब ये आपका DFA नहीं हो सकता, ये आपका NFA। ये आपकी थर्ड डिफरेंस जो बता रहा हूँ, ठीक है, कि एप्सिलॉन मूव्स कैन बी इन NFA, नॉट इन द DFA। जैसे अगर इस एग्जाम्पल की बात हम करेंगे, यू आर ऑन Q1 स्टेट, स्टार्ट स्टेट होना है ऐसे, on 0 and on 1 stays on Q1, और same input 1 पे what will be my alphabet? 0 on same 1 input is going here, okay. After that epsilon moves or 0, it goes here,
दैट मीन्स अगर मेरे को 1 आया, अगर मेरा इनपुट क्या आया, बिगिनिंग में 1 आया मुझे, ठीक है, इट कैन स्टे इन द Q1, है ना, इट कैन गो टू द Q2, इट कैन गो टू द Q3. सो 1 इनपुट पे ये Q1 में भी रह सकता है, इट कैन स्टे ऑन द Q2 एंड इट कैन स्टे ऑन द Q3. डज मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? देखिए ना 1 पे तो Q1 पे है ना, 1 पे इधर भी जा सकता है ना, जब या तो इधर रुक सकता है या एप्सिलॉन मूव शो करके इधर भी जा सकता है. एप्सिलॉन का मतलब होता है मेरे को इनपुट की जरूरत नहीं, यहाँ 0 कमा एप्सिलॉन क्यों है, या तो ये 0 पे इधर जाएगा या अगर इनपुट भी नहीं हो तब भी जा सकता है. यानी कि इसके मल्टीपल पाथ्स हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है. फिर हमें देखना है कि जो हमारा इनपुट है क्या इसने एक्सेप्ट किया या डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबॉडी गेटिंग द पॉइंट? तो डिफरेंस तो क्लियर आनी चाहिए आपको दिमाग में. ये डायग्राम में बनाऊंगा ताकि फिर जरूरत नहीं लगे. देखिए Q1 है, इससे 0 1 पे इधर गया, ये आपका Q2 है, 0 और एप्सिलॉन पे ये Q3 पे जा रहा है, और फिर 1 पे ये Q4 पे जा रहा है जो कि एक्सेप्टिंग स्टेट है ना, और 0 और 1 पे इधर ही रह रहा है. Now let's work on this. अगर आप इसको पढ़ेंगे ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने बताई है, ठीक है. तो ये रहा आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक में फर्क क्या होती है. सो डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ये फर्क है कि डिटर्मिनिस्टिक एक ट्रैक से दूसरे प्रोसेस स्टेट पे दूसरी एंड नेक्स्ट एंड एक्सेप्टिंग लास्ट में होना चाहिए, तो एक्सेप्ट हो गया. अगर कहीं भी नहीं एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं आया तो रिजेक्ट, सिंपल एज दैट. लेकिन जो आपका ये है, इट वर्क्स लाइक ए थ्रेड्स इन अ प्रोसेस. A thread breaks, a process breaks into 2 threads. You know threading? Yes. Multi-threading, you know? Multi-threading में ये होता है, एक प्रोसेस है, वो अपने जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक ये है कि इस क्लास की सफाई करनी है, इस क्लास की जब मैं एक प्रोसेस मैंने लगाई सफाई, अब इसके मैं 2 हिस्से करूंगा, 1 2 3 4 हिस्से करूंगा, मैं 4 थ्रेड्स लगाऊंगा. क्या लगाऊंगा? अंदर से 4, एक थ्रेड इसके ऊपर काम करेगा, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे. चारों थ्रेड सफाई कर रहे हैं लेकिन ये अलग अलग कर रहे हैं. ये इस पे कर रहा है तो ये साइमल्टेनियस हो गया ना, ये साइमल्टेनियसली कर रहे हैं. एक से फर्स्ट आपके पास 4 कोर प्रोसेसर्स के, एक कोर उस पे काम कर रहा है, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, तो चारों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना. और चारों एक ही प्रोसेसर में कर रहे हैं क्लीनिंग. दैट्स कॉल्ड थ्रेडिंग. दैट्स कॉल्ड व्हाट? तो मैं उसमें एक प्रोसेस में थी, इसको ब्रांच किया, इसके लिए सब ब्रांच है, फर्दर ब्रांच है. तो इधर कहीं पे एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो रिजेक्ट. तो अगर इसमें से कहीं पे एक्सेप्ट हुआ तो एक पाथ भी अगर एक्सेप्टिंग है इन सब में से, सो आई से दिस लैंग्वेज इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय माय ऑटोमेटिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटिक. ठीक हो गया? डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब इसकी तरफ देखिए, ये रहा मेरा Q1, ठीक है. आपने 0 फॉर एग्जाम्पल इनपुट दिया है, क्या दिया है, तो 0 पे तो Q1 पे ही रहेगा ना. लेकिन अगर आपने 1 लिया, किधर जा सकता है, ये Q1 पे ही रह सकता है सेल्फ लूप, ये Q2 पे जा सकता है, और एप्सिलॉन को करके तो यहाँ 3 है. क्लियर? बाद में नहीं बोलना मेरे को बुक समझ नहीं आती है, बट पढ़ने न तो बुक, अब आप घर में जाके बुक ही नहीं खोलोगे तो उसमें मैं क्या कर सकता. अब मैं बुक ही पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक बंदे ने बोला मुझे समझ नहीं आया बुक, तो किसी ने बोला ना आप ऐसे, सो अब मैं बुक ही पढ़ा रहा हूँ ना सीधे. अब मैं लाइन बाय लाइन में पढ़ना है. आई एम टेलिंग यू द जिस्ट. नाउ यू हैव टू गो होम एंड स्टार्ट रीडिंग. यू विल हैव फन and it will be so easy like ABC if you at all read. It's up to you now, you read or not. अच्छा जी, और जो आप स्लाइड्स आते हो ना वो किधर से, मेरी बुक से ही आते हैं, ठीक है. अच्छा साइंस बुक को पढ़े. अच्छा, अब फिर से 0 आ गया. अगर 0 अगर Q1 पे आप हो, है ना, देखो अगर आप Q1 पे हो, अगर आप Q1 पे हो, 0 आ गया, किधर क्या हो जाएगा, Q1 पे ही रहोगे. तो Q1 पे तो Q1 पे ही रहोगे. फिर अगर 1 आया तो इसमें से तीनों
क्योंकि अगर ये आया तो 3 में जा सकते हैं, है ना। फिर Q1 पे अगर वो फिर से चालू चलेगा। अब अगर आप Q2 पे क्या हो और यहाँ पे 0 आया तो किधर जाओगे? लेकिन बोल दो Q3, ठीक है। Q3 पे अगर फिर 1 आया तो कहाँ जाओगे? Q4 पे। Q4 पे अगर 1 आता गया या 0 आता गया, Q4 पे चाहे आपको 0 आए या चाहे 1 आए, जितने में आए, जितनी मर्जी है, वो सब एक्सेप्टिंग स्टेट Q4 पे ही जाएंगे, चाहे फिर 1 हो चाहे फिर 0, बिकॉज सेल्फ लूप। सो यानी कि ये वाली ट्रैक जो है ना, मुझे एक्सेप्टिंग दी जाता है। सो इफ आई ड्रॉ द स्टेट डायग्राम एंड आई सी one at least, the track is leading me to the accepting state, I will say my language is being accepted by the automaton, by this non-deterministic automaton. Does it make sense? Yes, sir. So this was the computation of N1 on input 0 1 0 1 1 0. अब ये इसमें मत ये है कि 0 पे ये जाएगा तो 1 पे यहाँ पे रहेगा, ये 1 पे इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है। So you have to keep these branches, all the branches, है ना। और फिर देखना है कि अगर आगे इनपुट आया तो इसको क्या हो जाएगा, इस वाले को क्या हो जाएगा, इस वाले को क्या हो जाएगा, ठीक है। द बुक सेज कीप फिंगर ऑन दिस Q0, फिर बताओ क्या हो गया, ये कहाँ चला, फिर दूसरी फिंगर यहाँ चलाओ, कीप फिंगर्स एंड सी। तो लास्ट में आपको फिंगर आनी चाहिए किसके ऊपर? Q4 के ऊपर। Q4 इज एक्सेप्टिंग स्टेट। हाँ जी, डज मेक सेंस? ये पढ़ना, ये वाला चीज जो होता है ना, ये यही चीज होता है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। मतलब फिर ये आया, फिर किधर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ना, ऑल दैट। देखिए आप कहते हैं कि लेट A be the language of all strings over 0 1, ठीक है। So language consisting of all, because language is the collection of all strings over this, what is this? Alphabet, ठीक है। Language is consisting of strings. Strings कहाँ से आते हैं? Alphabet is made up of symbols, ठीक है ना। Characters, they are called symbols technically. अब इसमें ये दूसरा है ना, इसमें क्या आपको दिख रहा है? Containing a 1 in the third position from the end. From the end third position, वहां 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके बाद चाहे 0 हो 1 हो, 0 हो 1 हो, लेकिन थर्ड पोजीशन पे 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रिंग ये ऐसे है, देखो ये वाली 0 0 1 0 0, 0 0 कहाँ जाएगा? Q1। अब 1 आया, 1 पे या तो ये Q1 पे रहेगा या Q2 पे रहेगा, है ना। या जब Q1 पे 1 आ गया, या तो ये Q1 पे ही रहेगा या तो Q2 पे, या ये Q2 पे जाएगा, Q2 को जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है? 0 0 0 0। जब ये 0 0 पे आ जाएगा, ये 0 पे Q3 पे जाएगा, फिर 0 पे Q4 पे जाएगा, एंड Q4 इसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो आपका ये वाली स्ट्रिंग है कि थर्ड, जो आपका 1 2 3, दिस वन, it should be 1, it should be 1. So this, what is the language of this automaton? बताया नहीं है, तो बता रहा हूँ, बताओ। What is the language? Language is this A. Is it containing a 1 in the third position from the end? Will 0 0 1 1 be accepted by this? No, because with third position पे 1 नहीं started from the end. Let us see. Try it. पहले 0 आया, कहाँ जाएगा? तो then Q1 पे, फिर दूसरा 0 किधर जाएगा? Q1, उसके बाद 2 1s है, 1 1, कहाँ पहुँचा? Q3, Is it accepting? It will not accept this string. It will accept this string because third position में क्या है? 1. Last but third. Simple as this, right? It's only simple. ठीक है जी, हो गया, समझ आ रहा है? Yes, sir. Now read the book. Now read the book and do all these examples from the book. Does it make sense? तो हमने, now recap with me. Now tell me, we said there are 4 differences between NFA and DFA. What are those? First one, DFA. First one by one by one.
Yes, the last girl, you tell me the first difference. Deterministic or non-deterministic? Fiza. इनपुट पे जब इनपुट प्रॉपरली बोलो ना, जो इनपुट कहां से आएगा? फ्रॉम अल्फाबेट. यस, फ्रॉम अल्फाबेट से इनपुट आया, ठीक है. एंड व्हेन यू गिव इट टू द स्टेट इट विल गो टू ओनली वन स्टेट. लेकिन एनएफए में क्या होता है? इट कैन गो टू द मल्टीपल स्टेट्स. नंबर वन डिफरेंस. नंबर सेकंड डिफरेंस, yes, all DFAs are NFAs, or all NFAs are not, because that's a generalization. NFA is a generalization of DFA, right? Okay, next difference. Epsilon moves. You can have epsilon moves. What does it mean epsilon moves? Without any input it will go to the next state. But will it say, for example, if you don't give any input to this, it will shut down. It will go to the next state without input. That's an epsilon move, right? Yes. That's why I have to keep my finger on it. I have to keep inputting it, right? Yes. If I don't give any input, it shut down. Please sit down, beta. Hanji. And next. DFA is a complete system. Huh? DFA is a complete system. We have to show. DFA is a complete system. That means We have to show every possible. we have to show all the possible inputs. What about the NFA? No need. One more difference. Death state. DFM is already. That's the part of it, no? If it is not leading, you can show the death state, but there is no such thing in the DFM. NFA. Or कोई difference? What about the states? How many states can go to? NFA will go to the Q raised power 2. I would like to see that. It will be somewhere down. ये एग्जाम्पल्स करना अपने घर में है. इट्स सिंपल ना, यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 आया, इट्स नॉट अ बिग डील. अब जो इसका ना 5 टपल्स होंगे, ये है ना फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. जो फॉर्मल डेफिनेशन है, क्या है? इसमें हाँ, P ऑफ Q जो है ट्रांजिशन फंक्शन, that is Q into including the epsilon, okay, from the sigma it can go to state. What is this equal to? Rest तो सेम है. Q is the final states. ये आपका अल्फाबेट हो गया, ये ट्रांजिशन फंक्शन हो गई, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है. वो तो पता ही है हमको, है ना, सेम ही है. लेकिन इसमें ये डिफरेंट है ना, है ना. एक तो एप्सिलॉन भी आ सकता है, नंबर 1, ठीक, और कोई भी इनपुट आ सकता है. एंड यू गिव टू पर्टिकुलर स्टेट में आपने कोई इनपुट दिया ना, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, इंक्लूडिंग, ये वो कह रहा है कि आपने पर्टिकुलर कोई स्टेट है, उसके ऊपर कोई इनपुट दिया. इनपुट कहां से लोगे? अल्फाबेट से. इससे अल्फाबेट दिखा रहा है. और यूजिंग द एप्सिलॉन आल्सो इट कैन लीड टू नॉट जस्ट वन स्टेट, इट इज अ सेट ऑफ स्टेट्स, राइट? इट कैन लीड टू सेट ऑफ स्टेट्स. उसका मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? Q raised power 2. Hopefully it has given it. एक डेफिनेशन में देना चाहिए था, ऐसे नहीं दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट यू कैन राइट इट. You can write it here instead of this. You can write it Q raised power 2. Okay? In fact, yes, Q raised power. जितने भी states आपके हैं, raised power 2. Does it make sense? Keep that thing also in mind. That it can go to the जितने भी states हैं raised power 2. ठीक है? That's all for you. Shut it down.